Hello friends, welcome to problem solution of process costing. This question was asked in Saurashtra University examination in 2019. Friends, before we move further, pause this video and go through this entire question so that you can understand it easily. So hope friends you have gone through this question. तो friends जैसे कि यहाँ information दी गई है, product passes through two processes before completion in Ham Chemicals Limited. यानी यहाँ पे जो एक product है दो प्रोसेस में से पास होती है. यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है फॉर बोथ प्रोसेस, in which first raw material introduced in first process, here number of units are missing, means we have to find it out, but the price per unit is available, that is rupees 9. After that amount of direct wage and other expenses are available. After that the units of normal wastage are given for both process. उसके बाद जो ये वेस्टेज यूनिट्स है उसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट यहाँ पे दी गई है फॉर द बोथ प्रोसेस. After that abnormal wastage units are available. So here we can see that abnormal wastage is only in first process. After that the information of output transferred is given, in which from first process जो output godown में transfer होता है और process 2 में transfer होता है. Output transfer to godown is 2000 units and output transfer to second process is 6000 यूनिट्स. यहाँ पे जो गोडाउन में ट्रांसफर होता है उसमें एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट इज द कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज 20 रुपीज. और जो सेकंड प्रोसेस है उसमें से ये जो आउटपुट जो है वो फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर होता है, बट दिस आउटपुट यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स आर मिसिंग. And the last information is about abnormal gain in units. So we can see here that abnormal gain is there only in second process, and in the bracket here the cost per unit for abnormal gain is available. और अगर इंफॉर्मेशन हम देखें तो नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस 1 इज 5% ऑफ द यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस. यानी कि जो नॉर्मल वेस्टेज है फर्स्ट प्रोसेस के अंदर वो 5% है. किसके 5%? तो द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, बट दिस यूनिट्स आर नॉट अवेलेबल, वी हैव टू कैलकुलेट देम. Here we are required to prepare a process accounts and abnormal wastage and abnormal gain accounts. So let's friend solve this question. So friends we will start with process 1 account. फ्रेंड्स ये जो पूरा क्वेश्चन ये अकाउंट है प्रोसेस अकाउंट, हम 3 स्टेप में गिनेंगे. फर्स्ट स्टेप इज वी विल फिल ऑल द डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर्स. सेकंड स्टेप ऑल द डिटेल्स ऑफ यूनिट्स एंड थर्ड स्टेप ऑल द डिटेल्स ऑफ अमाउंट. तो पहले जो पहला स्टेप है उसमें ये जो पर्टिकुलर्स सारी है डिटेल्स वो हम फिल करते हैं. तो व्हाट विल कम डेबिट साइड? तो डेबिट साइड आएगा रॉ मटेरियल एंटर्ड इन फर्स्ट प्रोसेस, आफ्टर दैट डायरेक्ट वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस. डेबिट साइड इतनी इंफॉर्मेशन आएगी. नाउ लेट अस सी क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड ऑलवेज पुट नॉर्मल वेस्टेज, यानी नॉर्मल वेस्टेज हमेशा यहाँ क्रेडिट साइड आएगा. सेम वे इन दिस क्वेश्चन एबनॉर्मल वेस्टेज इज ऑलरेडी गिवन. नॉर्मली ये हमें कैलकुलेट करना होता है, बट हियर इट इज गिवन, सो एबनॉर्मल वेस्टेज विल ऑल्सो कम हियर क्रेडिट साइड. आफ्टर दैट द आउटपुट ट्रांसफर. तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस में से दो जगह पे आउटपुट ट्रांसफर होता है, फर्स्ट इज सेकंड प्रोसेस एंड देन ट्रांसफर टू गोडाउन. तो ये हमने सबसे पहले जो पर्टिकुलर्स की डिटेल्स फिल कर दी है. अब हम यूनिट्स के लिए जाएंगे. तो यहाँ पे कितने यूनिट्स रॉ मटेरियल के इंट्रोड्यूस हुए हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग. Okay friends, so here we are going for the calculation of units introduced in first process. तो यहाँ पे हमें सीधी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, but it is said that के normal wastage is 5% of units introduced in the process. यानी कि ये जो नॉर्मल वेस्टेज है वो जितने यूनिट्स अंदर डाले गए हैं उसका 5% है. So here we have assumed that suppose units introduced in the process are 100. So we can say that at the rate of 5% normal wastage unit should be 5. Okay, now here I am writing normal wastage units and right hand side units introduced.
So when wastage units as per assumption are 5, at that time units introduced are 100. So in our case, in this process, normal wastage units are 500, then what should be the units introduced? Now we will apply cross multiplication for this. So we can say that 500 into 100 divided by 5. So we have introduced total 10,000 units in first process. ओके नाउ वी आर कंटिन्यू विद द यूनिट्स कॉलम. तो यहाँ पे हमें मिल गया है 10,000 जो यूनिट्स है दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन रॉ मटेरियल. अब राइट हैंड साइड जाते हैं तो वहां पे जो नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स ऑलरेडी दिए हैं क्वेश्चन में 500. सेम वे एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स आर आल्सो अवेलेबल इन द क्वेश्चन 1500. उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस में ट्रांसफर होते हैं यूनिट्स दैट आर आल्सो अवेलेबल 6000 और ट्रांसफर टू जो गोडाउन है वो भी अवेलेबल है 2000 यूनिट्स. नाउ वी विल मेक टोटल ऑफ यूनिट्स कॉलम बोथ साइड इट शुड बी इक्वल. तो लेफ्ट साइड 10,000 है और राइट साइड भी आप अगर टोटल करेंगे तो 10,000 आ जाएगा. इट मस्ट बी इक्वल बोथ द साइड. Okay friends, now we will go for the third step, that is the filling information about amount. Now we will start with the debit side in which first we will put the amount for the units introduced. तो यहाँ पे जो 10,000 units introduce हुए थे उसकी प्राइस थी 9 rupees per unit. यानी कि for 10,000 units the total amount will be 90,000. Then direct wages and other expense amount is already given in the question. Now credit side, first we will consider the units of normal wastage. So which price we should consider for the units of normal wastage? So always remember friends, consider the selling price of wastage for this normal wastage units. So here as per information the selling price of wastage per unit is 4 rupees. So we will apply it here for 500 units. So 500 units at the rate of 4 rupees. तो यहाँ पे आएंगे 2000. नाउ रिमेंबर फ्रेंड्स, ये जो वेस्टेज सेलिंग प्राइस है वो एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स के लिए हमें ध्यान में नहीं लेनी है. फॉर एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स वी विल ऑलवेज कंसीडर द कॉस्ट प्राइस दैट either we have to calculate or it that will be given in the question. यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है, देखिए यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है ट्रांसफर टू गो डाउन इन विच ब्रैकेट इट इज गिवन दैट के ₹20 पर यूनिट. तो ये जो ₹20 पर यूनिट है that is the cost price per unit of the finished goods और finished output. यानी कि ये 20 रुपीज है वो हमें एबनॉर्मल वेस्टेज के लिए, ये जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हुए हैं यूनिट्स उसके लिए, और ये जो गोडाउन में ट्रांसफर होते हैं ये तीनों के लिए 20 रुपीज लेने हैं. मगर फ्रेंड्स यदि ये जो 20 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हमें ना दे तो हमें कैलकुलेट करना होगा. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट अस सी. So here calculation of cost per unit we will use this formula: total expense of the process minus selling price of normal wastage divide by units introduced in the process minus units of normal wastage. तो आइए इसमें अमाउंट हम डालते हैं. तो टोटल एक्सपेंस ऑफ प्रोसेस अगर हम डेबिट साइड के टोटल एक्सपेंस देखें दैट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड अदर एक्सपेंस, तो उसका टोटल होगा 1,92,000. उसमें से जो नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स है उसका जो सेल हमने किया है 2000 वो माइनस करेंगे और नीचे आएगा यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड. तो यूनिट्स टोटल थे 10,000 माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल वेस्टेज जो है 500. नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस. तो ऐसे आएगा 1,90,000 डिवाइड बाई 9,500. So finally here we will receive 20 rupees per unit cost price. Now this cost price was already given here in the question transfer to go down. तो ये जो सेम cost price है हम अप्लाई करेंगे abnormal wastage ट्रांसफर टू सेकंड प्रोसेस और ट्रांसफर टू गो डाउन के लिए, यानी कि यहाँ पे आएंगे 30,000, 1,20,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली. अब फ्रेंड्स हम क्लोज करेंगे ये अमाउंट का कॉलम. तो दोनों साइड का जो टोटल है वो बराबर आना चाहिए. तो हियर 1,92,000 टोटल इज देयर बोथ साइड. दिस टोटल ऑलवेज मस्ट बी इक्वल.
ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड प्रोसेस अकाउंट. ये जो फॉर्मेट विल रिमेन सेम. तो हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट स्टेप से. एज पर फर्स्ट स्टेप विल पुट द डिटेल्स इन पर्टिकुलर्स. तो सबसे पहले यहाँ पे रो मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये सेकंड प्रोसेस है. तो विल राइट हियर ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1. आफ्टर दैट डायरेक्ट वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस. आफ्टर दैट नॉर्मली यहाँ पे जो एबनॉर्मल गेन या लॉस होता है वो हमें कैलकुलेट करना होता है. बट इन दिस क्वेश्चन फॉर सेकंड प्रोसेस एबनॉर्मल गेन इज गिवन. नाउ नॉर्मल लॉस यानी कि नॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल वेस्टेज अगर क्रेडिट साइड आएगा तो ये जो एबनॉर्मल गेन है वो डेबिट साइड आएगा. नाउ राइट हैंड साइड यानी कि क्रेडिट साइड एज यूजुअल नॉर्मल वेस्टेज, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ये दो चीजें यहाँ पे आएगी. Okay friends, now we are going for the second step for process number 2 account, and that second step is to put the information about units. तो ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 जो ट्रांसफर हुए हैं यूनिट्स वो है 6000. तो वो यहाँ पे हम रख देंगे. सेम वे द यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल गेन आर अवेलेबल इन द क्वेश्चन. तो 500 वो भी यहाँ पे रख देंगे. नाउ राइट हैंड साइड units of normal wastages are available, that are 1000, but the units of transfer to finished goods are not available in the क्वेश्चन. तो हाउ वी विल फाइंड इट? इट्स वेरी सिंपल. तो सबसे पहले हम डेबिट साइड का जो यूनिट्स का कॉलम है उसका टोटल करेंगे, दैट इज 6500. द सेम टोटल वी विल पुट हियर राइट हैंड साइड 6500. उसमें से ये जो नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स है 1000 वो हम डिडक्ट करेंगे. तो जो अब यूनिट्स हुए हैं रिमेनिंग, तो these are the units that we have transferred to finished goods account. Okay friends, now we are going for the third step, that is to put the information about amount. तो ये जो 6000 यूनिट ट्रांसफर हुए थे प्रोसेस 1 से, तो उसकी सेम अमाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे 1,20,000. आफ्टर दैट द डायरेक्ट वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस एज गिवन इन द क्वेश्चन. After that abnormal gain. Now what about abnormal gain? So remember friends, same like abnormal wastage, do not consider the wastage selling price here. Instead of that consider the cost price. So again in this question cost price for abnormal gain units is given in the bracket, that is 36 per unit. तो 500 इंटू 36 पर यूनिट, तो यहाँ पे आएंगे 18,000 रुपीज. नाउ राइट हैंड साइड अगर हम जाए तो नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स है वो हम वेस्टेज सेलिंग प्राइस कंसीडर करेंगे. तो फॉर दिस सेकंड प्रोसेस दिस वेस्टेज सेलिंग प्राइस इज 3 रुपीज पर यूनिट. तो 4000 यूनिट्स यहाँ पे आएंगे टोटल 3000. Okay, now what about the units that we have transferred to finished goods account? तो यहाँ पे हमें cost per unit लेनी है. हालांकि यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दे दी गई है 36 पर यूनिट, दैट इज द कॉस्ट. बट वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट, सपोज ये 36 रुपीज हमें नहीं दिए गए हैं तो ये कैसे कैलकुलेट करने हैं. तो आइए देखते हैं. The same formula we will use that we have used in the first process. तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस ऑफ द प्रोसेस यानी कि सेकेंड ये जो प्रोसेस है उसके टोटल एक्सपेंस यानी कि जो ट्रांसफर हुआ है मटेरियल प्लस लेबर प्लस अदर एक्सपेंसेस, तो वो हो गए 1,83,000. उसमें से जो नॉर्मल वेस्टेज है उसकी सेलिंग प्राइस 3000 माइनस करेंगे और नीचे आएगा यूनिट्स इंट्रोड्यूस. तो सेकंड प्रोसेस में 6000 यूनिट्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं और यूनिट्स ऑफ नॉर्मल वेस्टेज है 1000. अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे आएगा 1,80,000 डिवाइड बाई 5000. बाय फर्दर सिंप्लीफाइंग हमें कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी 36 रुपीज. So we will continue with this 36 rupees cost per unit for the units of finished goods 5500 into 36 यानी कि आएंगे टोटल 1,98,000. अब फ्रेंड्स एज यू नो दोनों तरफ जो अमाउंट का कॉलम है उसका टोटल मिल जाना चाहिए. तो यहाँ पे दोनों तरफ आप देख सकते हैं द टोटल इज 2,01,000. Okay friends, now we are going for the further answer, that is the abnormal wastage account. तो जो फॉर्मेट है वो प्रोसेस अकाउंट की तरह ही सेम रहेगा फॉर abnormal wastage.
वी विल स्टार्ट विद डेबिट साइड बिकॉज एबनॉर्मल वेस्टेज पहले हमें देखना है कौन सी प्रोसेस में था। तो एबनॉर्मल वेस्टेज फर्स्ट प्रोसेस में था जो हमने क्रेडिट साइड लिखा था, यानी एबनॉर्मल वेस्टेज में हमें डेबिट साइड लिखना है। यहाँ पे प्रोसेस 1 अकाउंट यूनिट्स वेयर 1500 और उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 30,000। यानी ये जो तीनों इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोसेस 1 से डेबिट साइड पे यहाँ दिखानी है। नाउ फ्रेंड्स दीज आर द यूनिट्स वेस्टेज यूनिट्स। तो बट ऑब्वियस है वो हम कॉस्ट प्राइस से नहीं दिखाएंगे बट विल सेलिंग एट द स्क्रैप वैल्यू। तो इसकी जो स्क्रैप वैल्यू थी यानी कि वेस्टेज सेलिंग प्राइस थी वो थी 4 रुपीज पर यूनिट प्रोसेस 1 में। तो 1500 यूनिट्स जो है वो हम सेल कर देंगे 4 रुपीज पर यूनिट यानी कि 6000 में। नाउ वी विल क्लोज दिस अकाउंट। तो यूनिट्स का जो कॉलम है तो दोनों तरफ पे टेली हो जाएगा 1500। ओके, नाउ व्हाट अबाउट अमाउंट। तो अमाउंट जो है 30,000 डेबिट साइड ज्यादा है। द सेम टोटल वी विल पुट हियर क्रेडिट साइड। उसमें से ये 6000 जो है वो बैंक अकाउंट में हमें दिखाए थे सेल ऑफ स्क्रैप, वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे बैलेंस 24,000 दैट इज वी विल ट्रांसफर टू P&L अकाउंट बिकॉज दिस इज द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। नाउ फ्रेंड्स सेम वे वी विल प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन देखना है कौन सी प्रोसेस में है। तो वी हैव फाइंड 8 एबनॉर्मल गेन इन प्रोसेस 2 अकाउंट जहां पे हमने डेबिट साइड लिखा था। तो यहाँ पे हमें क्रेडिट साइड लिखना है प्रोसेस 2 अकाउंट, टोटल 500 यूनिट्स एंड इट्स कॉस्ट इज 18,000 रुपीज। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना है यानी कि डेबिट साइड। तो यहाँ पे हमें लिखना है नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, क्योंकि ये जो यूनिट्स है 500 वो अच्छे यूनिट्स है, वेस्टेज नहीं है। यानी कि नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स का अकाउंट कम होगा 500 यूनिट्स से और उसमें जो ये 1500 रुपीज की सेल भी कम होगी। तो ये 500 एट द रेट ऑफ वेस्टेज प्राइस पर यूनिट 3 हमें यहाँ पे दिखाने हैं 1500। नाउ वी विल क्लोज दिस एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो सबसे पहले तो यूनिट्स का कॉलम तो दोनों तरफ ये मिल जाएगा 500 500। आफ्टर दैट द कॉलम ऑफ टोटल। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है 18,000, द सेम अमाउंट वी विल पुट डेबिट साइड ऑल्सो 18,000। अब उसमें से ये 1500 रुपीज जो है नॉर्मल वेस्टेज की सेलिंग प्राइस वो हम माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 16,500 and that will transfer to P&L account because this is abnormal gain. Now friends we are going to calculate the net amount of abnormal profit or loss. So but obvious here the amount of abnormal loss is higher, that is 24,000। उसमें से abnormal gain की amount हम deduct कर देंगे यानी कि 16,500। So here we can say that for Hem Chemicals net abnormal loss for both the process is 7,500।